Ignited Minds Tutorials is dedicated to exploring the essential principles of marketing for organizational commerce. We cover topics relevant to Class 12 students following the Maharashtra State Board syllabus. Our recent video delves into the intricacies of marketing, offering a comprehensive explanation of key concepts and strategies. By breaking down the fundamentals, we aim to equip students with the knowledge and skills needed to excel in their studies and future careers in the field of commerce. In our tutorial, we dissect the various elements of marketing, including market research, consumer behavior, product development, pricing, distribution, and promotion. We also explore the critical role of marketing in organizational success and the impact of digital technologies on modern marketing practices. Through engaging and informative content, we strive to ignite the minds of our viewers and inspire a deeper understanding and appreciation for the world of commerce. Our ultimate goal is to empower students to think critically, analyze market trends, and make well-informed decisions in the dynamic business environment. Whether you are a student preparing for exams or someone simply interested in marketing, Ignited Minds Tutorials is here to provide you with the knowledge and tools necessary for success in the world of organizational commerce. Okay, people will talk about the last chapter in OC for your 12th standard, and that's basically marketing. ठीक है, तो marketing basically होता क्या है? What is marketing? So marketing एक किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने बहुत अच्छा क्वालिटी दिया, उसका जो है तो बहुत अच्छा शेप एंड साइज़ दिया उसका, ठीक है, लेकिन मतलब तमाम चीज़ों में आपका प्रोडक्ट जो है तो A1 है, लेकिन मार्केट में उतारने के टाइम पे आप उसका मार्केटिंग इफेक्टिवली नहीं कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. सो यू हैव टू प्ले और रैदर पे अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस ऑन मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, आज की तारीख में मार्केटिंग के बहुत सारे मीडियम्स आपको अवेलेबल हैं. तो मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, और मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट का करके आप किस तरीके का इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सटेंसिवली अबाउट मार्केटिंग. If we look into the weightage of the chapter with regards to the previous year questions that have been asked, so with option मतलब MCQ के approximately 20 marks आए हुए हैं और without option के 15 marks का trend दिखा है. ठीक है, ओके. इंट्रोडक्शन, हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे यहाँ पे. इंट्रोडक्शन, we will cover the concepts of marketing, the types of marketing, what is the importance of marketing to the society, the firm which is basically the producer and the consumer. ठीक है, functions of marketing on 7 P's of marketing. So these are the things that we are going to cover. Okay. Introduction भाई साहब, मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ. आप भाई साहब किसी भी चीज़ का मार्केटिंग नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है उस चीज़ को मार्केट में सर्वाइव करना, वो चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड हो. ठीक है, इट कैन बी प्रोडक्ट रिलेटेड और इट कैन बी सर्विस रिलेटेड एज वेल. उसका मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ओके. Marketing is a pervasive in nature and it affects our day-to-day life in every possible manner. Pervasive मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर आपको बोलूँ यार मैंने ना कैनन का कैमरा यूज़ किया है, क्या मस्त कैमरा है. ठीक है, तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आप भी अगर कैमरा खरीदने का मंतव्य लें तो आप कैनन का ही लेंगे. ठीक है, सो ये परवेसिव होता है. मार्केटिंग आपको परसुएड कर रहा है to buy a product or a certain service from a brand. ठीक है, ओके. सो ये हमारा एवरीडे. मार्केटिंग इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. एक आर्ट भी और एक साइंस भी है. कैसे? देखिए, आर्ट होता है कि कैसे आप माइंड को स्टडी करें. ठीक है, कंज्यूमर के माइंड को, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना ये आर्ट है. और साइंस मतलब 2 + 2 4 होता है वैसा. ठीक है, आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. एक साइंस भी है. ठीक है, ओके. मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड mercatus, which means to trade merchandise or to place where business is
वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग होता है, मतलब ट्रेड से जुड़ा हुआ। देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द वर्ड मार्केट। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। सो दीज आर डिफरेंट things that are correlated to market. Place concept of market. The term market is commonly understood as a place where buyers, sellers and other intermediaries come together to exchange goods or services for money or money's worth. तो market भाई साहब क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे buyers और sellers आते हैं, ठीक है, to exchange goods or services for money और money's worth. तो पैसों के लिए गुड्स और सर्विसेज का जिस जगह पे एक्सचेंज होता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्केट, ठीक है। इट इज नोन एज मार्केट। कमोडिटी, तो ये हो गया आपका प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ। तो व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स बेसिकली कम टुगेदर टू एक्सचेंज, ठीक है। तो बायर्स जो होंगे वो पैसा देंगे और जो सेलर्स होंगे दे विल एक्सचेंज देयर कमोडिटीज और सर्विसेज, ठीक है। कमोडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई साहब? इफ कमोडिटी कॉन्सेप्ट, इन कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, importance is given to the process of buying and selling of goods or services and not the place of exchange. तो buying and selling of goods को importance दिया गया है and not the place of exchange. ये आपका है commodity concept of market, ठीक है। Exchange concept of market. Exchange concept of market gives emphasis on the exchange of goods and services between buyer and seller done with free consent as well as mutual trust. तो buyer और seller में जो भी exchange of goods हो रहा है, ठीक है। एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। तो किस एरिया में ये हो रहा है भाई साहब, ठीक है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स टू फिक्स द प्राइस फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बायर्स और सेलर्स में एक प्राइस निर्धारित हो जाती है कि इस प्राइस पे हम चीजों को बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सो कस्टमर इज द वन हु डिसाइड्स, हेंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द मार्केट टू बी असेस्ड इज द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर का नीड क्या है या डिमांड क्या है। स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज गिवन राइज टू द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कॉल्ड द स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट। आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता जा रहा है क्योंकि इसका रीच बहुत लोगों तक है। आपने भाई साहब कोई पैम्पलेट बांटे आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए और इस पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट कराया, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों तक आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक फेसबुक का ऐड बनाया या इंस्टाग्राम का ऐड बनाया या भाई साहब यूट्यूब में ऐड बनाए तो आपकी पहुंच बहुत ज़्यादा तक होगी। तो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग इज गेनिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द प्राइम मोड्स ऑफ मार्केटिंग। द न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई-कॉमर्स पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हैव मेड बाइंग एंड सेलिंग ईजी एज वेल एज कन्वीनियंट फॉर बायर्स एंड सेलर्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजन पे ही धंधा होता है या फ्लिपकार्ट पे ही या आपका क्या क्या है और मित्रा वगैरह पे ही। आप अगर देखोगे फेसबुक पे भी आप चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। आप भाई साहब इंस्टाग्राम पे भी चीज़ों को खरीद सकते हैं। यू कैन बेसिकली, तो आज की तारीख में ये सारे तमाम जो मार्केट है वो बहुत एक्सटेंड हो चुका है। तो मार्केट एक डिजिटल फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। पहले के ज़माने में मार्केट हुआ करता था, एक जगह होती थी जहाँ पे लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को पैसों के एक्सचेंज करते थे। लेकिन आज बिना देखे सुने आप चीज़ों को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे फेसबुक है भाई साहब, फेसबुक में भी आपको तमाम चीज़ें खरीदती बिकती हुई नज़र आएंगी। आपके इसमें तो है ही, क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह लॉजिस्टिक्स में तो है ही, बट इन सब में भी है, ठीक है। तो आज की तारीख में मार्केट बहुत वाइड रूप से आपका डिजिटलाइज हो चुका है और बिक रहा है, ठीक है। सो द न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स, ठीक है, पोर्टल्स, द न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस हैव मेड बाइंग एंड सेलिंग ईजी एज वेल एज कन्वीनियंट फॉर बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ईजी क्यों हो गया है? क्योंकि सेलर को कम से कम मार्केट में जाकर चीज को नहीं बेचना है, घर बैठे भी वो बिकवा सकता है, ठीक है। और बायर के लिए भी मार्केट में जाना जरूरी नहीं है, वो घर बैठे भी देख सकता है। आज की तारीख में अगर आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी भी देख रहे होंगे तो आपने नई करके बहुत सारा पैसा और टाइम बचा लिया है ना। टाइम ज़्यादा था, आपको घर से कोई गाड़ी लेकर भाई साहब आप मूवी थिएटर में जाएं, वहाँ पे भाई साहब खर्चा करें और फिर एक मूवी देखें। मूवी देखेंगे तो पॉपकॉर्न लगेगा भाई साहब,
ये सब तमाम चीज़ें हो जाती थी। तो खर्चा और टाइम दोनों भी जाता था। आज की तारीख में घर के किसी एक कोने में बैठकर शांति से आप उस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो थिंग्स आर चेंजिंग। डिजिटल फॉर्मेट में बायर्स और सेलर्स दोनों भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बायर्स और सेलर्स, आज की तारीख में जो मूवीज़ बन रही हैं उससे ज़्यादा भाई साहब आपके OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ बन रही है ना, बिकॉज पीपल आर डायरेक्टेड मोर टूवर्ड्स इट। वेरी सून द मूवी थिएटर्स माइट नॉट बी एग्जिस्टेंट एनी मोर, ठीक है, और मे बी समथिंग एल्स इज गोइंग टू प्रॉप अप देयर। होगा ही ऐसा भाई साहब। जिस रेट से पहले मूवीज़ बनती थी और जिस रेट से भाई साहब मूवीज़, आप देखोगे एक मूवी रिलीज़ हुई थी बहुत सालों पहले, शाहरुख खान की मूवी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ नाम था भाई साहब उसका, ठीक है। और ये मूवी दादर के एक पर्टिकुलर हॉल में, चित्रा के क्या टॉकीज़ का नाम था, उस हॉल में भाई साहब 1.5 साल तक चली। आप सोचिए किसी पिक्चर को 1.5 साल चलाने में 4 शोज़ हैं आपके, उतने लोग भी तो आने चाहिए ना, वरना भाई साहब हम साउंड AC सब कुछ चला रहे हैं, हमारा खर्चा कैसे निकलेगा। तो कोई भी जो भी पिक्चर चलाएगा, पिक्चर का मालिक जो होगा, मूवी हॉल का जो मालिक होगा, वो भी ऐसे ही लॉस में थोड़ी ना चलाएगा उसको, ये शाहरुख खान की मूवी इसलिए चलाएंगे, नहीं भाई साहब, वो भी अपना प्रॉफिट देखेगा ही। तो आप सोचिए इतने लोग गए उसको देखने के लिए और 1.5 साल से जाते रहे कि भाई साहब वो मूवी प्रॉफिट में रही, ठीक है। सो ये पहले होता था, आज की तारीख में ये सब नहीं है भाई साहब, ठीक है। थिंग्स हैव चेंजिंग बिकॉज नाउ बीट मूवीज, बीट भाई साहब एजुकेशन, बीट गुड्स और सर्विसेज, they are reaching your doorstep without you taking the trouble of reaching them, ठीक है, क्लियर है। so it is becoming highly convenient both for buyers and sellers, okay। types of market भाई साहब, markets are broadly classified into on the basis of area covered, basis of time, basis of volume of transaction, basis of importance, basis of nature of goods, basis of regulation and basis of competition। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, लोकल मार्केट एक होता है, भाजी मार्केट हो गया, जो भी आपके देखो ये सब लोकल मार्केट्स हैं, यहाँ पे भाई साहब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मिलते हैं, दीज आर लोकल मार्केट्स, ठीक है, ओके। द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द लोकल जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ रीजन इज नोन एज लोकल मार्केट। तो इसको अपन लोकल मार्केट बोलेंगे, मतलब एक लोकल जोग्राफिकल रीजन के दरमियान जो मार्केटिंग करते हैं आप, जो चीज़ों को बेचते हैं आप, उसको अपन बोलेंगे लोकल मार्केट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लोकल मार्केट, ओके। Example, vegetables grown by a small farmer are sold by him in the local market। तो लोकल मार्केट में वो भाई साहब बेच रहा है, ओके। नेशनल मार्केट क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड अ नेशनल मार्केट, ठीक है। किसी फार्मर ने भाई साहब यहाँ पे गन्ने उगाए होंगे और उस गन्ने को भाई साहब मार्केट तक पहुँचा रहा है, जिसका गन्ने का जूस बनाकर आप पी रहे हैं, तो इट इज़ अ लोकल मार्केट प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन भाई साहब अगर समझ लो आप you are कोलगेट, हाँ गन्ने का अगर शुगर बना दिया आपने, तो वो तो भाई साहब पूरे मतलब पूरे इंडिया में जाएगा, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, दैट इज कॉल्ड अ नेशनल मार्केट। तो प्रोडक्ट और सर्विस जब नेशनल लेवल पे फैलता है तो उसको अपन बोलते हैं नेशनल मार्केट। बुक्स पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CA और CS आर सोल्ड इन द नेशनल मार्केट भाई साहब। बुक्स जो पब्लिशर पब्लिश करता है, ठीक है, ये पूरे भाई साहब नेशनल मार्केट में सोल्ड होता है। इंटरनेशनल मार्केट, द मार्केट फॉर द कमोडिटीज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अदर कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट। तो भाई साहब जो बाहर तक जाता हो आपका, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, टी ग्रोन इन आसाम इज एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। इनफैक्ट इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी, ठीक है। चाय जो है वो हमारे से पहले चाइनीज़ लोग ही चाय पीते थे और चाइनीज़ लोगों से ये हम तक आया, ये पेड़ आया, और आज की तारीख में भाई साहब आसाम इज़ वन ऑफ द हॉट डेस्टिनेशंस फॉर प्रोड्यूसिंग टी। और ये जो टी है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी टी है, इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, ठीक है, ओके। इज ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से क्या है, देखो जैसे जितने भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं, फल, सब्जी, मछली, मीट, ये सब भाई साहब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाले। तो इनका ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने खरीद के लाया तो बहुत सालों तक इसको रख सकते हैं बेचने के लिए, नहीं, उसको आपको ताबड़तोड़ बेचना पड़ेगा। सो दीज आर पेरिशेबल गुड्स, ठीक है। सो द मार्केट दैट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर अ फ्यू आवर्स और फॉर अ डे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो बहुत कम समय के लिए जो एग्जिस्ट करता हो उसको अपन बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है।
In this type of market, perishable goods such as vegetables, fruits, milk products, etc. are sold. ये भाई साहब perishable goods हैं, ठीक है? Okay. Short period market, the type of market exists for a short period of time. Means weekly markets, फेस्टिवल मार्केट्स, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स, ये सब है भाई साहब, ठीक है? तो शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब क्या हो गया, जैसे मेला लगा है भाई साहब, ठीक है? वीकली मेला लगता है, दिस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. कभी कभी गांव में लगता है ना भाई साहब, एक हफ्ते का मेला लगा हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, तो ये एक हफ्ते का मेला लगा हुआ है, ठीक है? तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए लगा हुआ है, ठीक है? वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट्स, जैसे अभी ये नवरात्रि के समय और दिवाली के समय आप देखोगे भाई साहब रोड में वेंडर्स लोग बहुत कुछ लेकर बेचते हैं, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग परचेस करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें. फेस्टिवल मार्केट्स, जैसे आपके दिवाली के टाइम पे ये जो पटाखों का वो लगता है ना, स्टॉल्स लगते हैं, ठीक है? तो ये पटाखों का जो स्टॉल्स लगते हैं, ये भी एक फेस्टिवल मार्केट हो गया. ये कुछ दिनों के लिए रहेगा भाई साहब, एक हफ्ता 2 हफ्ता जो भी है, ठीक है? दिवाली के पहले. सो दैट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल मार्केट. और दिवाली के टाइम पे जो मिठाइयाँ बनती हैं, ये जितने भी आपके मिठाइयों की दुकान है, ये भी भाई साहब बड़ा सा स्टॉल लेकर मिठाई बेचते हैं, ठीक है? सो दीज आर फेस्टिवल मार्केट्स. मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स, ठीक है? मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स मतलब आपके मेलों के टाइम पे जो मार्केट होते हैं, ठीक है? पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट. तो भाई साहब पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब जो आपके ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाले, ठीक है? उन गुड्स को, जैसे पटाखे हैं भाई साहब, अभी फोड़ लोगे तो फोड़ लोगे, 1 साल बाद फोड़ने जाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा उसमें से, ठीक है? तो ये आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं. दीज आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, ठीक है? सो दीज आर सोल्ड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. इसको हम शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं. लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को जो सेल करते हैं, जो बहुत दिनों तक ताज़ा रह सकते हैं और यूजेबल भी रह सकते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग पीरियड मार्केट आपका क्या क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस टाइप ऑफ मार्केट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है. ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड इन दिस मार्केट. तो जो आपके नॉन पेरिशेबल होते हैं नेचर में, मतलब जो खराब ना हो जाए टाइम के साथ, वो इनको बेचा जाता है, ठीक है? जैसे एक लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? हो सकता है कि भाई साहब टाइम के साथ ये आउटडेटेड हो जाए, लेकिन अगर एक फ़ैन किसी हार्डवेयर की दुकान में है तो वो नॉन पेरिशेबल है ना? एक ट्यूबलाइट अगर किसी हार्डवेयर की दुकान में है तो वो नॉन पेरिशेबल है. पेंट का डब्बा है, नॉन पेरिशेबल, जब तक खोला ना जाए, ठीक है? सो ये नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं. ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, तो आपका देखो 2 टाइप का मार्केट होता है, होलसेल और रिटेल. होलसेल मतलब आप ऐसे मार्केट में जाकर बोलेंगे आधा किलो कांदा दे दो तो आपको भगा देगा, ठीक है? वहाँ पे भाई साहब ये गोनी में लेकर जाना पड़ेगा आपको. ये होलसेल मार्केट है. हियर यू डू नॉट परचेज goods in very small quantities. So these are wholesale markets, ठीक है? Wholesale markets, in wholesale market buying and selling of goods is undertaken in large quantities at cheaper prices. तो बहुत cheap prices में हम बहुत बड़े पैमाने पे goods को buy और sell करते हैं, ठीक है? In this type of market, sellers are known as wholesalers and buyers are known as retailers, ठीक है? तो यहाँ पे retailers लोग लेकर आते हैं, wholesale के वाले जो है वो retail को देते हैं. रिटेल मार्केट, इन इट इज द मार्केट, ठीक है? इट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज. अब रिटेल में जाकर आप पाव किलो, आधा किलो, ठीक है, ऐसा आप ले सकते हैं रिटेल मार्केट में, ठीक है? इट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल्स द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज. तो इस स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स का लेना देना होता है वैसा, ठीक है? एग्जाम्पल लोकल वेजिटेबल वेंडर, किराना स्टोर्स, बिग बाजार, डी मार्ट, ये सब भी आपके भाई साहब रिटेल मार्केट्स हैं, ठीक है? दीज आर नॉट होलसेल मार्केट्स. ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट भाई साहब आपका, इट रिफर्स टू द मार्केट फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है? ओके, एग्जाम्पल मार्केट फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, इसको अपन प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है? प्राइमरी मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई साहब आपका लोग इसके लिए जिंदा हैं, है ना? ये मार्केट आप बंद नहीं कर सकते. दिस इज एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है? इसीलिए आप देखोगे कोरोना के टाइम पे भी ये आपका छोटे से पैमाने पे देखो बाजार खुला हुआ था यहाँ पे, ठीक है? ये प्राइमरी मार्केट है, इसको ये एसेंशियल सर्विसेज है, ठीक है? कोई लोग ठेले पे लेकर बेच रहे थे, ये एसेंशियल सर्विस है, इसको आप बंद नहीं करवा सकते, इसीलिए इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है? सेकेंडरी मार्केट, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सीमेंट वगैरह, ठीक है? तो
यार्न मार्केट, आयरन ओर मार्केट। टर्मिनल मार्केट भाई साहब क्या होता है? इट refers टू द मार्केट वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और टू द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पे भाई साहब फाइनली गुड को बेचा जाता है कस्टमर को, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होती है? मार्केट ऑफ गुड्स, मटेरियल एंड प्रोड्यूस, मार्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, दोनों भी, कंज्यूमर गुड्स भी और इंडस्ट्रियल गुड्स भी। हाँ, कैपिटल मार्केट भाई साहब जो आपका स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब आपके कैपिटल मार्केट है। इट इज अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। द फाइनेंशियल एसेट्स विच आर डेल्ट इन द कैपिटल मार्केट हैव लॉन्ग और इनडेफिनिट मैच्योरिटी पीरियड। तो ये भाई साहब आपके फाइनेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेटेड मार्केट है भाई साहब, इट रेफर्स टू द मार्केट्स विच आर रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री। स्टॉक मार्केट में आपका जैसे सेबी का रेगुलेशन है, ठीक है, तो आरबीआई का रेगुलेशन बैंक्स के लिए है, तो इसको अपन बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। मतलब यहां पे कुछ भी ताबड़तोड़ आप नहीं कर सकते हैं, अनरेगुलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते, एवरीथिंग विल बी प्रीटी मच रेगुलेटेड, ठीक है। कमोडिटी एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस, बैंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये देखिए एक चिप्स का पैकेट खोलने में दोनों की लड़ाई हो रही है। Commodity exchanges, stock exchanges, foreign exchanges, banks, these are what? These are regulated markets, ठीक है, these are so इनको अपन क्या बोलेंगे? These are regulated markets, ऐसे मार्केट्स जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस या लॉ से कंट्रोल हो, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? रेगुलेटेड मार्केट। जैसे कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इन सब में रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं, आप कुछ भी अपना मनमानी नहीं कर सकते। सेबी है, आरबीआई है, ये सब रेगुलेटेड है, ठीक है, दे आर द रेगुलेटरी थिंग्स। अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट, जैसे देखो बैंक में जब आप लोन दे रहे हैं किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं ये आपकी मनमानी नहीं है, ये आरबीआई डिसाइड करके रखा है, ठीक है। जो आप स्टॉक्स के प्राइसेस हैं वो आप कैसे रेगुलेट करते हैं ये आपकी मनमानी नहीं है, ये भाई साहब सेबी के नियंत्रण में होता है। सेबी इसको कंट्रोल करता है, कितना परसेंट शेयर आप लिक्विडेट कर रहे हैं ये सारा सेबी देखता है। सेबी इज बेसिकली अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। एमसीएक्स है, वैसे ही सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, वहां पे आप अपनी मनमानी प्राइसिंग नहीं कर सकते, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट क्या हो जाएगा भाई साहब? जैसे आज मैं एक डेयरी का ओनर हूं तो मैं अपने प्राइस पे दूध बेच सकता हूं, कोई ले ना ले, ठीक है। मैं कोई वेजिटेबल वेंडर हूं, मैंने भाई साहब लगा दिया टमाटर 500 रुपये किलो, कर लो बात, तुमको लेना है लो, नहीं लो, मेरी मर्जी, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे अनरेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे प्राइसिंग आपके ऊपर रेगुलेटेड है, ठीक है। मतलब ये कोई अथॉरिटी रेगुलेट नहीं कर रही है। अक्सर आपने सुना रहेगा, जैसे एक टाइम आया था जब ऑनियन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ये बहुत पहले की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पे बीजेपी हार गई और इलेक्शन जो लोग कंटेस्ट करते हैं या जो लोग मतलब एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बोला कि बीजेपी के हार का एक मेन कारण ये है कि वो ऑनियन प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन उन कैसे कंट्रोल करेंगे? गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का ये अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि दबदबा बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई पे है, तो ये ऐसा मार्केट है, अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट है। इट रिफर्स टू द मार्केट्स व्हिच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशंस। दीज मार्केट जनरली ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई वैसा, ठीक है। तो अगर कोई मोनोपोलिस्टिक ट्रेड नहीं हो रही होगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती है। हाँ, गवर्नमेंट बैंक रेट्स को कंट्रोल कर सकती है। सेबी भाई साहब आप कितने शेयर्स बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, कितना परसेंटेज आपने लिक्विडेट किया, ये सब वो लोग रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है। बाजार में, लोकल मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं उस पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को गवर्नमेंट को हैंडल करना है, ताकि जो आपका फूड ग्रेन्स है उसकी कमी ना हो, जो वेजिटेबल्स हैं उसकी कमी ना हो, ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है। लेकिन उसको बेचना गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व नहीं है, या गवर्नमेंट का उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। क्लियर है? ओके ओके ओके।
On the basis of competition, perfect market, भाई साहब, it is a market where a large number of buyers and sellers buy and sell homogeneous, that is identical products. Identical products मतलब क्या है भाई साहब आपका? Identical products मतलब ये बेंच और ये बेंच identical है, ये बेंच अलग है, कोई कंपनी ए है और ये कोई कंपनी बी है, ये दोनों भी ये बना रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन हो गया। इसका जितना लेंथ ब्रेथ और जो मटेरियल यूज हुआ है, इसका भी उतना ही लेंथ ब्रेथ और वही मटेरियल यूज हुआ है, तो मतलब एकदम परफेक्ट कंपटीशन है। इसने 10 रुपये में बेचा, इसने 15 रुपये में बेचा, लोग इसके पास जाएंगे भाई साहब। परफेक्ट कंपटीशन, जिसका भाई साहब प्राइस कम होगा उसके पास जाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को जब आप बेचते हैं तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई साहब रोनित भी इसी साल 12th में आया है और राहुल मात्रे भी इसी साल 12th में आया है, तो दो स्टूडेंट्स हैं, तो दो स्टूडेंट्स में क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन होगा भाई साहब। अगर मैं बोलूं कि कोई रिपीटर है जो इस साल का पढ़ाई का एग्जाम दे रहा है, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन होगा? नहीं, क्योंकि वो वही पढ़ाई 2 साल में कर रहा है। आपने जो पढ़ाई 1 साल में की है वो पढ़ाई 2 साल में कर रहा है। सो इट्स नॉट अ केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। The buyers and sellers have perfect knowledge about the market conditions and hence only a single piece prevails in the market. तो एक टाइप का ही प्रोडक्ट जो है तो मार्केट में प्रिवेल करता है। Imperfect market, it is a market situation where market imperfections exist like single seller, ठीक है। तो सिंगल सेलर है भाई साहब, एक ही सेलर है, उसकी मनमानी चल रही है, ठीक है। मैल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई। मैल एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? अभी देखो, अभी रोनित क्या कर रहा है समझ लो, वो कामोटे में लेट्स से ही इज अ ओनली हार्डवेयर सप्लायर। कामोटे में बिल्डिंग्स बन रही हैं भाई साहब, उनको चाहिए, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फ्लैट्स बनी हुई, उनको भी चाहिए, तो माल मसाला चाहिए। तो ये देख रहा है कि अचानक भयानक में 4 बिल्डिंग्स बन रही हैं, सीमेंट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ये सीमेंट को दबा देगा। अभी समझ लो भाई साहब 300 रुपये का एक गोनी मिल रहा होगा, तो ये दबा देगा उसको। अभी 4-5 बिल्डरों का काम रुका हुआ है, उनके लेबरर्स बैठे हुए हैं, ऐसे ही पगार तोड़ रहे हैं भाई साहब, तो बिल्डर्स इसके पास आएंगे, भाई साहब क्या हुआ, क्या? अरे माल मिल ही नहीं रहा है और इससे गोदाम में माल अच्छा खासा धरा हुआ है, ठीक है। फिर ये बिल्डर को कॉल करेगा, एक ऐसा मेरे को जुगाड़ मिला है, 300 नहीं वो 400 में बोल रहा है, बोलो चाहिए तो बोलो, आगे बात करूँ। तो ये वही चीज़ को घुमा देगा। तो ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये सिंगल सप्लायर है इन दिस एंटायर रीजन, ही इज़ द ओनली सप्लायर, ठीक है। सप्लायर नहीं है इसलिए गेम खेल रहा है भाई साहब, इज डूइंग अ मैल एडजस्टमेंट आउट हियर, ठीक है। सो मैल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसने क्या किया? सप्लाई था लेकिन उसको दबा दिया, जिसके वजह से मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो गया? डिमांड। अब ये भाई साहब सप्लाई करेगा हाई प्राइस पे, ठीक है, ओके। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द पार्ट ऑफ बायर्स और सेलर्स। बायर्स और सेलर्स को पूरा नॉलेज नहीं है, जिसके वजह से ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट बोलेंगे। इम्परफेक्ट मार्केट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। मोनोपोली। इन मोनोपोली अ सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर कंट्रोल्स द मार्केट। एक सिंगल प्रोड्यूसर पूरे मार्केट को भाई साहब कंट्रोल कर रहा है। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर हिज प्रोडक्ट। कोई भी भाई साहब दूर दूर तक उसका प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। द सिंगल प्रोड्यूसर मोनोपोलिस्ट कंट्रोल द सप्लाई कैन फिक्स द प्राइस। तो सिंगल प्रोड्यूसर भाई साहब प्राइस को फिक्स कर सकता है। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। तो सिंगल प्रोड्यूसर बेसिकली कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट, इसको अपन बोलेंगे मोनोपोली। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ड्यूओपोली। इन ड्यूओपोली देयर आर 2 सेलर्स, 2 सेलर्स हैं भाई साहब, सेलिंग ईदर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सेम टाइप का प्रोडक्ट, और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि भाई साहब रोनित और राहुल 2 हार्डवेयर के सप्लायर्स हैं, ठीक है। तो आपका रोनित जो है तो जो पाइप्स बेच रहा है वो प्रिंस पाइप्स हैं, और ये जो पाइप्स बेच रहा है वो एस्ट्रल पाइप्स हैं, दोनों भी पाइप्स ही बेच रहे हैं, ठीक है। ही इज सेलिंग अ पाइप ऑफ अ डिफरेंट कंपनी, ही इज सेलिंग अ पाइप ऑफ अ डिफरेंट कंपनी। तो हो सकता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो, और हो सकता है दोनों भी एस्ट्रल के पाइप ही बेच रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रल एंड प्रिंस आर बेसिकली पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। So these 2 sellers enjoy a monopoly in the sale of the product produced or sold by them. तो इनकी फिर भी मोनोपोली है, ये आपस में 60 गांठ में चलेंगे भाई साहब, ठीक है, ओके। ओलिगोपोली। इन ओलिगोपोली देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स। बहुत ही जितना बड़ा मार्केट है उस मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम सेलर्स हैं, ठीक है। देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स, दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ईदर अ होमोजेनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो हो सकता है कि सब के सब
एक साथ ही होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचें या सबके साथ एक साथ ही कोई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचें, ठीक है। Monopsony refers to the market situation where there is only one buyer of a particular product or a service। तो एक ही बायर है भाई साहब, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का। Okay. Select the answers from the options given below and rewrite the statements। The term market is derived from the dash word mercatus, that is Latin। Okay. In the dash concept of market, emphasis is given on buying and selling of goods and services। Exchange। Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements। The dash concept of the market is related to exchange concept। Place, commodity, area। exchange concept भाई साहब area के ऊपर होगा, ठीक है। Perishable goods such as vegetables, fruits, milk products etc. are sold in the dash market। Very short period, ठीक है, क्योंकि perishable goods हैं। Okay। Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements। The market for the commodities which are produced in one country are sold in other countries। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, इंटरनेशनल मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट वेयर ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, रिटेल मार्केट। दिस इज नोन एज रिटेल मार्केट। अल्टीमेट ना। राइट अ वन वर्ड टर्म ऑफ विच कैन सब्स्टिट्यूट वन सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इसको अपन बोलेंगे परफेक्ट मार्केट। टू सेलर्स सेलिंग ईदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो डिओपोली बोलेंगे इसको हम, ठीक है। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्साटस। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। मार्केट में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो इट इज ट्रू, ठीक है। एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट गिव्स एम्फेसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर। इट्स ट्रू, ठीक है। एरिया कॉन्सेप्ट एक्सचेंज को, ठीक है। फॉल्स कैसे हो गया भाई साहब? इन द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बायर एंड सेलर टू मीट इन पर्सन। ओके। द मार्केट ऑफ द कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट होगा भाई साहब, ये फॉल्स हो जाएगा। मार्केटिंग इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू बिजनेस फर्म बट ऑल्सो टू कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी एज अ होल। तो कंज्यूमर्स और सोसाइटी पे मार्केटिंग का क्या इंपैक्ट है? द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। ओके। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइसेस। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो भी आपके चैनल्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड देयर बाय प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो समझो कोई एक मार्केट है जहाँ पे एक हफ्ते में भाजियाँ आती हैं, भाजी या जो भी है हफ्ते में एक बार ही आती है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो क्या वहाँ पे भाजियों का प्राइस ज़्यादा होगा भाई साहब। लेकिन अगर रोज़ फ्रेश भाजी या फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हो तो क्या भाई साहब वहाँ पे प्राइस कम होगा? यस, क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा बनाया है। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर और द वेंडर्स of fruits and vegetables to make their products reach the market on an everyday basis. So more of sales will happen, lesser of pricing will happen. If the transport network and system is bad, then it might be the case that only once in a week the fruits or the vegetables are reaching the market from the vendors. In that case the prices are going to be high, okay, and will cause inconvenience to the consumers. Okay. इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितना आपका मार्केटिंग अच्छा होगा, जितना आपका प्रोडक्ट्स मार्केट पे ऑन टाइम रीच होंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लोग ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर कर पाएंगे इन नो टाइम, हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वुड इंक्रीज एज डिफाइंड बाय पॉल मजूर, ठीक है। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी, ठीक है। मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। दिस हेल्प builds firms to take an initiative to provide the quality goods at cheaper prices. This results in maintaining as well as increasing the standard of living of the consumer, ठीक है। तो इससे भाई साहब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मार्केटिंग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट इंपैक्ट। ओके। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। Marketing research helps the organizations
to understand the needs and expectations of consumers and develop products accordingly. ठीक है, तो मार्केटिंग भाई साहब जो है एक रिसर्च को लेगा, ठीक है, रिसर्च फैक्टर को, helps the organization to understand the needs and expectations of consumers and develop the products accordingly. This research involves collecting customers' review through different sources. It helps the organizations to make necessary changes in their products, provides employment. Obviously, marketing creates job opportunities. Marketing में आपका jobs बढ़ेगा, ठीक है? Okay. Due to automation, lesser employment opportunities are available in production sector. आज की तारीख में ऑटोमेशन हो गया है. ऑटोमेशन मतलब क्या है? मशीन से, और मशीन में आपने भाई साहब फीड कर दिया है. पहले एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 लोग लगते थे. आज की तारीख में ऑटोमेशन और मशीन से 5 लोग उस प्रोडक्ट को बना देंगे, ठीक है. शर्ट्स जैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें. उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक मोड में सब चल रहा है. लेसर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन प्रोडक्शन सेक्टर. तो प्रोडक्शन सेक्टर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है. लोग उतने ज़रूरी नहीं है, लोगों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर प्रोसेस के लिए कोई ना कोई मशीन बना डाला है और उसको ऑटोमेटेड मोड में रख दिया है. लेकिन जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है वो है ह्यूमन इंटरैक्शन, दैट इज़ मार्केटिंग, ठीक है. तो वाइल मार्केटिंग हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है. और सैड स्टोरी ये है कि ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ दीज इंजीनियर्स आर एक्चुअली इनटू मार्केटिंग, क्योंकि प्रोडक्शन में अभी लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये जो ऑटोमेशन हो गया है इसमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है. सो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द इंजीनियर्स आर डूइंग मार्केटिंग, और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग में हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर, इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग अपना. तो आज जैसे जैसे ऑटोमेशन, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत प्रोडक्शन में कम पड़ रही है. तो ये लोग जाएंगे कहाँ? दे विल गो इनटू मार्केटिंग. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. Increase in national income. Effective marketing leads to industrialization, more jobs, and also makes the economy strong and stable. Marketing can also bring about rapid development of a country by integrating agriculture and industry. All of this results in higher national income. तो इससे भाई साहब आपका नेशनल इनकम बढ़ता है, ठीक है. Just one moment people. Okay, so marketing can also bring about rapid development of a country by integrating agriculture and industry. All of this results in higher national income. Consumer awareness, जागो ग्राहक जागो भाई साहब. Marketing creates aware. खोल देना भाई साहब प्लीज. ठीक है, जाओ आज की तारीख में तुम लोग. Okay, marketing is not only important to business firms but also to consumers and society as a whole. ठीक है. The following points explain the importance of marketing. ठीक है. तो मार्केटिंग के भाई साहब क्या क्या है? डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम और कंज्यूमर अवेयरनेस. तो देखते हैं हम भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे घटता है मार्केटिंग में, ठीक है. ओके, मार्केट एक्टिविटीज मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी एट रीजनेबल प्राइसेस. मार्केटिंग अगर इफेक्टिव होगी तो रीजनेबल प्राइसेस में आपके गुड्स एंड सर्विसेज भाई साहब आप तक, कंज्यूमर तक पहुंचेंगे. इसको ऐसे समझो कि आपने भाई साहब प्रोडक्ट और सर्विसेज तो बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको मालूम नहीं है बेचना किसको है, कहाँ बेचना है. तो माल आपका गोदाम में पड़ रहा है, सड़ रहा है, ठीक है. सड़ रहा है बोले तो समझ लो आप हार्डवेयर ही मैन्युफैक्चर, लेकिन बिक तो नहीं रहा है. इसको आप अगर इसको बिकवाने का क्या तरीका है? घर घर में जाके नॉक करो, कहिए चाहिए क्या, घर घर में जाके नॉक करो. ये बहुत बड़ा कॉस्ट है. लेकिन अगर हम प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर के पास नॉलेज पहुंच जाएगा, और नॉलेज पहुंच गया तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है. मार्केटिंग के अलग अलग तौर तरीके होते हैं. मेरे को याद आ रहा है, मैं एक शार्क टैंक का एक वो देख रहा था एपिसोड. उसमें ये जो बंदा है ना, जो बोट कंपनी का मालिक है, आई फॉरगॉट हिज नेम, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट हिज नेम. तो बोट कंपनी के ओनर है वो, मतलब ही वाज द फाउंडर ऑफ बोट. सो व्हाट ही डिड वाज कि दिल्ली में स्पीकर्स का एक पूरा मतलब मार्केट है, ठीक है. और इस मार्केट में
उन्होंने बोला यार इतने सारे स्पीकर्स हैं, ये दुनिया भर का स्पीकर है, कौन ही हमारा स्पीकर लेगा। तो कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हुई देखो, ठीक है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, ऐसे इन्होंने 4-5 बंदे उतारे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, तो जैसे राहुल मात्रे डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं कस्टमर बन के जा रहा हूँ, अरे बोट का स्पीकर है क्या? राहुल बोलेगा ये कौन सा कंपनी है, नहीं नहीं है, दूसरे है, दिखाऊँ क्या? नहीं नहीं बोट का ही चाहिए। चला गया मैं। एक दूसरा बंदा आया भाई साहब, तो मैंने यहाँ पे इन 5 लोगों को बोला भाई साहब मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ आपको, ये काम आप करते रहिए। तो पहले भाई साहब सी आ गई, उसके बाद तो भाई साहब मंजरी, बोट का स्पीकर है क्या? राहुल मात्रे। जब तक भाई साहब पायल जाएगी तब तक राहुल मात्रे परेशान हो जाएगा, ये कौन सा कंपनी है भाई साहब, ठीक है, जिसका माल ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब भाई साहब 2-3 दिन बाद मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को राहुल मात्रे के पास भेजूंगा कि भाई साहब ये है, मैं एक बोट कंपनी से आ रहा हूँ, ये मेरे स्पीकर से आप रखना चाहेंगे क्या? दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। मतलब अलग अलग तौर तरीके हैं मार्केटिंग के, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट तक, कस्टमर तक, देखो समझो इस चीज को कि बोट कंपनी भाई साहब एक स्पीकर बना रही है, और ये स्पीकर कैसे ही पहुंचेगा, सोचो इस चीज को, ठीक है। कि आप भाई साहब एक ओनर हो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, कैसे आप मतलब एक इंडिविजुअल कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे उस प्रोडक्ट को? आप सोचिए, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा कंपटीशन है, कैसे ही आपका ही प्रोडक्ट पहुंचेगा? क्यों कस्टमर चूज करेगा आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए? सिर्फ एडवर्टाइजिंग से हो जाएगा ये काम, पब्लिसिटी से हो जाएगा? नहीं, मार्केटिंग आपको जरूरी है। मार्केटिंग मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके पास गुड्स पहले पहुंचने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद भाई साहब होलसेल पे, होलसेल से रिटेल पे, ये आपके बहुत बड़ा मार्केटिंग चेन है। समझ में आ रही है भाई? होलसेल मार्केट में गुड्स रखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? चलो कस्टमर ने आपका ऐड देखा, ठीक है, लेकिन जब तक भाई साहब होलसेलर वाला आपका गुड नहीं रखेगा तो तब तक आगे जाएगा कैसे ये, ठीक है। सो मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग आपका, तो आप समझो आपके पास 2 तरीके हैं, आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करें और अपने गुड्स को बिकवाएं, ठीक है। तो 100 रुपए की चीज मार्केटिंग कॉस्ट के साथ आप 150 रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं, लेट्स से, ठीक है। और यही काम आप ना करके आपने भाई साहब प्रोड्यूस किया, और इस प्रोडक्शन को आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक एक इंसान का दरवाजा खटखटा कर उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो वो इंसान लेगा नहीं आपसे, क्योंकि मार्केटिंग नहीं है आपकी। ले भी लिया तो मतलब 100 में शायद कोई एक। भाई साहब मार्केट में, ठीक है, तो मैंने देखो समझो कोई एक स्पीकर है, ये स्पीकर है, ठीक है। इस स्पीकर को मैंने मार्केट में भाई साहब लॉन्च करवाना है, ठीक है। 2 तरीके हैं, मैं एक्सेसिव मार्केटिंग करूं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनके साथ नेटवर्किंग करूं, ठीक है। फिर भाई साहब एडवर्टाइजिंग भी करूं और कुछ मतलब और भी काम करूं जिससे मार्केट में मेरा दबदबा हो जाए, और कस्टमर घर से चलकर जब राहुल मात्रे जैसे होलसेलर या रिटेलर के पास पहुंचता है तो उसको मालूम है उसको ये स्पीकर चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। दूसरा तरीका क्या है, मैंने ये स्पीकर बनाया, अभी स्पीकर को बनाने के बाद मैं डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहा हूं, मतलब डोर टू डोर जा रहा हूं। मैंने लोगों को एम्प्लॉय किया, 100 लोगों को एम्प्लॉय किया भाई साहब, वो घर घर जाकर स्पीकर, उसमें किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए, और अगर चाहिए भी तो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो खर्चा किसमें ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। शायद पूरा दिन घूमने के बाद एक सेल्समैन एक ही पीस सेल कर पाए और उसको पगार देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मार्केट भाई साहब क्या करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, अगर आपने मार्केटिंग सही से की है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भाई साहब कम होता है, ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड देयरबाय प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका अगर सही होगा तो ये गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कम होंगे अपने आप, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। तो भाई साहब मार्केटिंग की वजह से ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो आप लोग जाते ही होंगे, तो मतलब आपके जितने भी दोस्त और जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनका तो आपको पेज दिखता ही होगा, और साथ में क्या दिखता है, मार्केटिंग दिखता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। वो डिपेंड करता है कि आप सर्च क्या करते हैं। आज की तारीख में भाई साहब आप सोचिए, बहुत बहुत मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि एक बार सुंदर पिचाई का एक ये देख रहा था मैं,
मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, लाइव केस, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट अ सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे जो जूरी मेंबर्स हैं, दे आर आस्किंग हिम, दिस इज़ माई फोन एंड लेट्स से आई गो अप टू यू, मैं यहाँ से आप तक चल कर गया, सो विल गूगल नो अबाउट इट। तो सुंदर पिचाई घुमा घुमा के आंसर दे रहा है, ठीक है। सी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, ये वो, नो 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 नो, जस्ट आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। जस्ट फिर से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इफ आई गो फ्रॉम हियर टू देयर विल गूगल नो अबाउट दिस। फिर से वही घुमा फिरा के, तो पता चल रहा है कि येस, द आंसर इज येस, ठीक है। डिप्लोमेटिकली वो नहीं रख सकते इस चीज को, नहीं बोल सकते, लेकिन गूगल विल नो अबाउट इट। अभी आप सोचो कि आप समझ लो अमेजन पे कोई चीज देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप अमेजन पे कोई चीज देख रहे हो, ये गूगल को मालूम चलेगा, और आप देखोगे फेसबुक में भी वही प्रॉम्प्ट आएगा आपको, आप इंस्टाग्राम में भी वही चीज का प्रॉम्प्ट आएगा, आपके पास अब OLX में भी उसी चीज का प्रॉम्प्ट आएगा। जितने भी साइट्स में आप जाओगे शायद उस चीज को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन प्रॉम्प्ट वही आएगा, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड कि कैसे आज की तारीख में मार्केटिंग आपके ऊपर हावी हो रही है, क्लियर है। सो इट इज अलाउिंग यू टू फिल्टर योर चॉइसेस, ठीक है। आज की तारीख में भाई साहब अगर किसी भी धंधे में आप हो और अगर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आती है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और ये आसान है, आसान है। डोर टू डोर मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट है। बैनर वाला मार्केटिंग शायद सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन कस्टमर के माइंड पे आप अपने प्रोडक्ट को जितनी बार हैमर करोगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आपके प्रोडक्ट के बिकने के, क्लियर है। इट इज ऑल अपॉन द हैमरिंग। इतनी बार हैमरिंग होनी चाहिए कि वैसा कस्टमर झक मार के आपकी चीज खरीद ले, ही वुड हैव नो ऑप्शंस बट टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, सो आज की तारीख में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली बढ़ रहा है ड्यू टू मार्केटिंग, क्योंकि आप तक अपने चाहिए गुड्स का पूरा इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद प्राइस टैग पहुंच रहा है, ठीक है। सो ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। दिस हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू टेक अप एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट चीपर प्राइसेस, ठीक है। तो क्या ही खर्चा कर डाला मैंने, एक फेसबुक का एड कैंपेन आप खुद ही रन कर सकते हो, गूगल में एड कैंपेन आप खुद रन कर सकते हो, यूट्यूब में एड कैंपेन आप खुद रन कर सकते हो। किसी मार्केटिंग एजेंसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो, आपके ऊपर है, कर सकते हो। ये उनका चलता रहेगा ऑटोमेटेड फॉर्मेट में। सो दीज एड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, व्हाट आर दे क्रिएटिंग फॉर यू, दे आर क्रिएटिंग अ हाइप फॉर यू, ठीक है। आपका गुड्स या सर्विसेज ऑब्वियसली आपके क्वालिटी पे चलेगा, लेकिन आपके गुड्स और सर्विसेज का इंफॉर्मेशन तो कम से कम ऐसे पहुंच रहा है ना, ठीक है। पहले के जमाने में क्या था भाई साहब, पैम्पलेट्स बांटो, ठीक है, फिर भाई साहब लोगों के दर दर जाओ, ठीक है, फिर भाई साहब बड़ा सा बैनर लगाओ, ये सब था। आज की तारीख में ये अप्रोच डाई आउट होता जा रहा है। नाउ दिस इज बेसिकली फनल मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। दिस हेल्प्स बिजनेस फर्म्स टू टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। तो अगर मेरा मार्केटिंग का खर्चा कम हो रहा है, बैनर बनवाऊं, पैम्पलेट छपवाऊं, अगर मैंने समझ लो भाई साहब गारमेंट्स का पैम्पलेट छपवाया और मैं किसी मॉल के सामने खड़ा हो गया, भाई साहब बांट रहा हूं, मॉल वाले लोग लेंगे और अगले स्टेप पे जाकर उसको फेंक देंगे, ठीक है। उन पैम्पलेट्स पे जूते के छाप ज्यादा पड़ेंगे, ना कि कस्टमर का दिमाग जाएगा, ठीक है। तो ये होना ही है, दिस इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। इससे अच्छा होगा कि भाई साहब जो उनका फेवरेट एक्टिविटी है आज की तारीख में, मोबाइल देखना, क्या मैं वहां तक जा रहा हूं, क्या मैं वहां पे इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूं, ठीक है। आप भाई साहब कोई आपको एक पैम्पलेट देता है तो आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपके पास टाइम है या नहीं, लेकिन मोबाइल के लिए तो आप टाइम निकाल ही लोगे ना भाई साहब। ये आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसमें तो आप जाओगे ही जाओगे, चाहे किसी भी उम्र के हो, और जब ये करोगे तो क्या आप तक मैं उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का कोई जरिया क्रिएट कर लूं। दिस इज स्मार्ट थिंकिंग, ठीक है। ओके, सो आज की तारीख में ये चीपर है। इवन अ पर्सन हु हैज नो नॉलेज इन मार्केटिंग कैन एक्चुअली रन गूगल एड्स, कैन एक्चुअली रन फेसबुक एड्स, कैन एक्चुअली रन एड्स ऑन यूट्यूब, कैन रन एड्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस से आप ये एड्स रन कर सकते हैं, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्या आप अपने लिए आज की तारीख में एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं फोन पे, इजी, उस बैनर को चलाइए भाई साहब, ठीक है, यू कैन डू इट, राइट। ओके, दिस रिजल्ट्स इन मेंटेनिंग एज वेल एज इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर। तो आपका खर्चा मार्केटिंग में अभी कम होता जा रहा है, तो खर्चा अगर वहां पे आप बचा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप खर्चा कहां पे करेंगे,
क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स पे, वहां पे आप खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर टू दीज प्रोसेसेस पीपल? अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैनेजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, marketing research helps the organizations to understand the needs and expectations of consumers and develop products accordingly। एक रिसर्च होता है, रिसर्च कैसा होता है कि आप मतलब आपने बहुत बार ऐसा सुना रहेगा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट अस, ठीक है, हाउ लाइकली आर यू गोइंग टू रिकमेंड आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और व्हाट डू यू थिंक कैन बी इम्प्रूव्ड इन आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये बेसिकली सर्वेज होते हैं, दीज आर सर्वेज। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस में भी आपको बहुत बार सर्वे पूछा जाता है, देखो आप स्किप सर्वे कर देते हो उसको। ठीक है, ये सर्वेज क्या होते हैं? दीज सर्वेज आर बेसिकली बाय मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके का सर्विस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस आज की तारीख में कोई भी सर्वे को रन करना बहुत आसान है। जैसे आप गूगल फॉर्म्स में सर्वे रन कर सकते हो भाई साहब, ओपिनियन पोल्स रन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपके ओपिनियन पोल्स रन कर सकते हैं गूगल प्लेटफॉर्म में, मतलब आपके यूट्यूब में भी आप ओपिनियन पोल्स रन कर सकते हैं। ठीक है, हम ये करना चाहते हैं, वुड इट बी करेक्ट, यस नो में रिप्लाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर सर्वेस। आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है, और सर्वे अगर आपको एक अच्छा खासा नंबर का मिल जाता है तो आप उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर सकते हो, अपने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, और अपने क्वांटिटी को भी वैसे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो मार्केटिंग में भाई साहब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं ड्यू टू ऑटोमेशन। तो आज की तारीख में भाई साहब ऑटोमेशन हो रहा है, लेसर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये हो चुका था कल, ऑटोमेशन मेरे को दिख रहा था, है ना। लेसर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन प्रोडक्शन सेक्टर। तो आपका भाई साहब लेसर, व्हाइल मार्केटिंग हैज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जागो ग्राहक जागो, ये भी हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग टू द फर्म। तो फर्म के लिए भाई साहब मार्केटिंग कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। इंक्रीजेस अवेयरनेस, क्रिएट्स ट्रस्ट। अवेयरनेस, आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ेगा, ठीक है, लोग ज्यादा जान पाएंगे। क्रिएट्स ट्रस्ट, धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग चालू हो जाएगा, लोग आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने लगेंगे। टैकलिंग द कंपटीशन, कंपटीशन में ऊपर आना है तो मार्केटिंग जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग तरीकों से लोग मार्केटिंग पे उतरते हैं। इंक्रीजेस सेल्स, ऑब्वियस सी बात है। बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस, तो कस्टमर के पास भाई साहब अगर आपके प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो ही तो वो डिसीजन लेगा आपके प्रोडक्ट को खरीदने का। ठीक है, और क्या है भाई साहब, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। तो मार्केटिंग अगर सब लोग एक ही तरीके से कर रहे हैं तो भाई साहब नहीं चल पाएगा, आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, तो मार्केटिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व्स सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। ओके, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस about the existing products, new arrivals, as well as the company which sells a particular product in the market. तो it creates awareness about the existing product, तो existing product का awareness create होता है। new arrivals क्या क्या है, ठीक है, as well as the company which sells a particular product in the market, ठीक है, और जो particular product कंपनी मार्केट में बेच रहा है। ठीक है, this helps to raise awareness among the potential customers and to create a brand image। ठीक है, तो इससे भाई साहब क्या होता है, अवेयरनेस बढ़ता है पोटेंशियल कस्टमर्स में, एंड टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, और भाई साहब ब्रांड इमेज भी बनती है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, क्रिएट्स ट्रस्ट। ठीक है, पीपल रेफर टू बाय फ्रॉम बिजनेस दैट हैव अ ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। ठीक है, तो लोग ज्यादा करके उस बिजनेस से खरीदने की कोशिश करेंगे जिसका एक रेपुटेशन बना है और जो रेपुटेशन ट्रस्टवर्दी है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ट्रस्ट इज बेसिकली, आप रातों रात भाई साहब ट्रस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, आप गुड्स डिलीवर करेंगे, गुड्स डिलीवर होने के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी तो सर्विस प्रोवाइड करके उसको कवर करेंगे, है ना। आपने समझ लो कोई लैपटॉप किसी कस्टमर को दिया, उसमें कोई खराबी आई, कल को वो लेकर आएगा, नहीं भागो ऐसे भेज दिया। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो फिर वो खत्म, कहानी खत्म। बट इफ यू प्रोवाइड सर्विस देन इट विल बी रिटेन। ठीक है,
तो ट्रस्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे बनता है, ठीक है। पीपल प्रेफर टू बाय फ्रॉम बिजनेसेस दैट हैव अ ट्रस्टवर्दी रेपुटेशन। तो भाई साहब अगर समझ लो आपको मैं बोलूं कि एक लैपटॉप लॉन्च हुआ है, इस कंपनी का नाम ABC है और आपके पास डेल लैपटॉप है, आप कौन सा बाय आउट करेंगे? डेल। भाई साहब उसका रेपुटेशन बन चुका है मार्केट में, है ना। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द कस्टमर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ओके, सच ट्रस्ट हेल्प द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर्स, ठीक है। ओके, इफ कस्टमर्स आर हैप्पी द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी एनहांसेस इन द मार्केट, ठीक है। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सीन चल रहा है, इसको अपन बोलते हैं नेट प्रोमोटर स्कोर, ठीक है। और हर एक कंपनी इस पे काम कर रही है, NPS बोलते हैं हम इसको, नेट प्रोमोटर स्कोर, ठीक है। आपने समझ लीजिए भाई साहब कोई प्रोडक्ट यूज किया है या कोई सर्विस यूज की है और उसमें आप बहुत फुलफिल्ड हैं, यू आर हैप्पी विद इट, ठीक है। समझ लो डेल लैपटॉप से आप हैप्पी हैं, यू आर रियली हैप्पी अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड। सो व्हाट विल यू डू? कल को अगर आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार या सगे संबंधी में से या एनी नोन पर्सन asks for your inputs on buying a laptop, you will refer to it। इसी को हम बोलते हैं नेट प्रोमोटर स्कोर। जो सर्वेज होते हैं आपके, उसमें ये लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, हाउ लाइकली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 with 1 being the highest and 10 being the lowest are you going to promote this product to somebody else known to you, ठीक है। तो इसमें आप 1 देंगे या 10 देंगे, आपके ऊपर है। तो इसको अपन बोलते हैं नेट प्रोमोटर स्कोर, इससे ब्रांडिंग होती है, ठीक है। आप जब किसी चीज को खरीदते हैं तो वहां से कॉल आता है और इस कॉल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पूछने का मूल उद्देश्य क्या है? ये आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली डाला जा रहा है कि हमारे ब्रांड को प्रमोट करो, ठीक है। आपसे भले ये पूछा जा रहा है कि अगर कल को कोई लैपटॉप खरीदना चाहे तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ लाइकली आर यू इंक्लाइन टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब अनकॉन्शियसली आपके माइंड में डाला जा रहा है ना भाई साहब कि आप हमारा प्रमोशन कीजिए, ठीक है। ओके, सच टेस्ट हेल्प द बिजनेस टू अर्न लॉयल कस्टमर्स। इफ कस्टमर्स आर हैप्पी द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी एनहांसेस इन द मार्केट। टैकलिंग द कॉम्पिटिशन, साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज help businesses to create a better image of their business than that of their competitors. Businesses can also take the help of modern technology to make their marketing more effective, ठीक है। तो बिजनेस भाई साहब क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाता है। इंक्रीजेस सेल्स, सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन टर्न इंक्रीजेस द प्रॉफिट। तो आपका भाई साहब मार्केटिंग सक्सेसफुल अगर होता है तो सेल्स में आपको अपलिफ्टमेंट दिखेगा, सेल्स बढ़ेगा तो भाई साहब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट्स। ओके, दीज प्रॉफिट्स आर रीइन्वेस्टेड into the business which helps the business to earn more profits in future. In modern times, survival of any business depends on the effectiveness of the marketing function. Basis for making decisions from inception of an idea to delivering the final product to the consumer, a businessman has to take several decisions. बहुत सारे decisions होते हैं। आइडिया आया एक प्रोडक्ट बनाने का, उसको लॉन्च करना है, उसको भाई साहब मार्केट में उतारना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांटने हैं, फिर भाई साहब होलसेलर्स में जाएंगे, फिर रिटेलर्स में एंड फाइनली कंज्यूमर्स में। तो कैसे ये सारा कार्यक्रम चलेगा? आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे हर लेवल पे। He has to take decisions as to what, how, when, how much and for whom to produce। कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कब करना है, ठीक है। ये सारी डिसीजंस उसको लेने पड़ेंगे। With an increase in the scale of operations, these decisions become more complex। तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है, मतलब जितना कंपनी बढ़ता जाता है उतना ही उसको चलाने की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। फंड्स कहाँ से आएंगे, ठीक है, मार्केट में जो डिमांड बढ़ेगा उसको सप्लाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें तमाम बढ़ती रहेंगी पैरेलली, ठीक है। मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन टू टेक द राइट डिसीजंस एट राइट टाइम, ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग में फ्लो बना रहता है। देखो आपने भाई साहब 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, आपका मार्केटिंग नहीं है, कब बिकेगा पता नहीं, अभी आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, इनको काम देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल आ चुका है, आप फिर से 1000 गुड इनसे बनवाएंगे, लेकिन इन हजारों को तो बेचने का आपने कोई कार्यक्रम चालू ही नहीं किया। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि इस 1000 के लोड को कैसे बेचूं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केटिंग आपका इफेक्टिव है तो प्रोडक्शन हुआ और रपा भाई साहब ये भी सेल हो गया और प्रोडक्शन, तो आप भाई साहब इत्मीनान रख सकते हैं। अगर मार्केटिंग को आपने सही रखा है तो ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ये स्टॉक पाइल नहीं होगा, ये भाई साहब क्लियरेंस होता रहेगा। नए गुड्स, आपके एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयड हैं,
प्रोडक्टिविटी भी चल रही है भाई साहब, आपका भाई साहब सेल्स भी चल रहा है, और सारा तमाम बिजनेस का भाई साहब कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर गुड्स को आपने इतने बड़े मात्रा में प्रोड्यूस कर लिया जिसको आप बेच ही नहीं पा रहे हैं, सो इट विल मेक योर प्रॉब्लम्स मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। तो आपको नए आइडियाज आते हैं, कस्टमर के नीड्स क्या क्या हैं आज की तारीख में। फीडबैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स enable the companies to make improvements in the existing products. Marketing enables a business to understand the rapid changes in taste and preferences of the people. तो कैसे कैसे भाई साहब चेंजेस हो रहे हैं लोगों के चॉइसेस में, ये मार्केटिंग से हमको समझ में आता है, मार्केटिंग के सर्वे से हमको ये सारे तमाम चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई एनी इमर्जिंग डिमांड पैटर्न इन द मार्केट। तो हमको भाई साहब एनी न्यू इमर्जिंग डिमांड पैटर्न जो रहेगा मार्केट में, ये भी हमको समझ में आता है, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। तो अभी तक हमने देखा कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस प्रोड्यूसर के लिए क्या है। नाउ वी विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। टिल नाउ वी हैव सीन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज मार्केटिंग हैविंग एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस टू एंड यूजर्स और कंज्यूमर्स, ठीक है। ओके, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ गुड्स। तो मार्केटिंग में बहुत सारे गुड्स, आपके बिजनेस लॉन्चेस प्रोडक्ट्स कीपिंग द मार्केट सेगमेंटेशन इन माइंड। तो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अ बिजनेस हैज टू प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स के लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स एक बिजनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी समझो भाई साहब लैपटॉप्स, ठीक है। तो डेल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो डेल पहले देखेगी कि भाई साहब कुछ लोग मेरा लैपटॉप का यूज जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ये कर सकते हैं, स्टडीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मेरा लैपटॉप का यूज थोड़ा सा हायर कॉन्फ़िगरेशन में जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह में यूज करेंगे। कुछ लोग मेरे लैपटॉप का यूज भाई साहब इधर से उधर जाने में, मतलब सारा प्रोग्राम उनका उसी में चलता रहेगा, ठीक है। तो हर एक सेगमेंट के लिए डेल अपना एक लैपटॉप बनाएगा, समझ में आ रहा है। प्रो बिजनेस, ठीक है, स्टूडेंट, इस सब के लिए भाई साहब एक लैपटॉप सेगमेंट। और आपको दिखेगा कि भाई साहब 25,000 से लेकर भाई साहब 3 लाख रुपए तक का लैपटॉप अवेलेबल है। इट डिपेंड्स कि एंड यूजर कौन है, ठीक है। तो मार्केटिंग का सर्वे आपको, तो मार्केटिंग बेसिकली एनेबल्स अ मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। और कंज्यूमर जो है वो अलग अलग कंज्यूमर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सपोजिटली कोई वीडियो एडिटिंग करता है, बहुत बड़ा वीडियो एडिटर है कोई, और उस वीडियो एडिटर को एक स्टूडेंट के लैपटॉप से काम नहीं कर सकता वो, ठीक है। उसको बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का भाई साहब लैपटॉप चाहिए। कोई भाई साहब गेमर है, गेम्स डिजाइन करता है, उसको भाई साहब ये स्टूडेंट वाला लैपटॉप नहीं चलेगा, ठीक है। सो अलग अलग कंज्यूमर्स के लिए आज की तारीख में अलग अलग गुड्स उसी सर्विस प्रोवाइडर से अवेलेबल है। सो दैट इज बेसिकली प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स, ठीक है। मार्केटिंग हेल्प्स अस टू प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ गुड्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। वैरायटी में चेंज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज एंश्योर्ड थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मार्केटिंग। तो पूरा भाई साहब रेगुलर सप्लाई मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इज एंश्योर्ड थ्रू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केट में भाई साहब रेगुलर सप्लाई से आपके गुड्स बने हुए हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। This results in stability of prices. Ensures provision of quality. देखो अगर मार्केटिंग आपका सही रहेगा तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिक रहे हैं, नए गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिक रहे हैं, तो ये आपका भाई साहब कांस्टेंट जो है तो ये मार्केटिंग की वजह से ही तो ये सारे गुड्स जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मार्केट में, है कि नहीं। पूरे मार्केट में फैलाव किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि आपने बहुत सारा मार्केटिंग कर लिया है, कस्टमर तक नॉलेज पहुंच गया और रफा रफ भाई साहब आपके गुड्स सेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में बना रहता है, तो कस्टमर के लिए भी ये सहूलियत है कि भाई साहब कभी भी वो मार्केट में जाएगा तो वो गुड्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज गुड्स व्हिच आर मेंटेन्ड इन द मार्केट। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। आप अगर किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं तो क्या आपको मोबाइल कवर भी मिल जाएगा वहां पे? क्या आपको भाई साहब हेडसेट भी मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी क्योंकि इनका रेगुलर सप्लाई बना ही हुआ है, ठीक है। ओके, एंश्योर्स प्रोविजन ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग आपका आज की तारीख में भाई साहब सस्ता उपाय है लोगों तक पहुंचने का। डोर टू डोर अगर आप जाएंगे भाई साहब बहुत महंगा उपाय,
ठीक है। तो क्योंकि आपका भाई साहब ऑनलाइन मार्केटिंग और डिफरेंट चैनल्स आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, सो इट्स अ वेरी सेफ प्रोविजन एंड इट्स अ वेरी चीपर प्रोविजन एज वेल, बिकॉज ऑफ विच आप अपना मार्जिन बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप उस मार्जिन को बचाने के बाद क्या करेंगे, अपने क्वालिटी में ज्यादा सुधार लाएंगे, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गुडविल आपके क्वालिटी और प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। Consumers are aware about various products and services available in the market as they have easy access to information. आज की तारीख में मार्केटिंग की वजह से, इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. दिस क्रिएट्स अ मॉरल प्रेशर ऑन बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कंज्यूमर. तो भाई साहब एक प्रेशर बन जाता है बिजनेसमैन पे, ठीक है, कि क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना जरूरी है. अदरवाइज सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं और कस्टमर को अगर हमसे क्वालिटी नहीं मिली तो दूसरे किसी से वो गुड्स और सर्विसेज उठाएगा और बेनिफिट्स अवेल करेगा, ठीक है. सो क्वालिटी की दौड़ लग जाती है. प्रोमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस. अभी प्रोडक्ट अवेयरनेस तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि मार्केटिंग के चलते आपका एक प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज कस्टमर तक जाता है. सो इट इंक्रीजेस प्रोडक्ट अवेयरनेस, ठीक है. थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज कंपनीज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. This helps consumers to know about different products and services available in the market. Further, it also creates awareness about the feature of the products. Consumer satisfaction. Marketing leads to consumer satisfaction through honest advertising, quality assurance and availability of innovative products. ठीक है, तो आपके मार्केटिंग की वजह से आप ना आज की तारीख में झोल झपाटा नहीं कर सकते. एडवर्टाइजिंग में लोग स्मार्ट हो गए हैं, ठीक है, कुछ भी उल्लू बनाकर नहीं बेच सकते. दे विल सेंस इट, ठीक है. अगर आपने ए से बी तक का प्रोडक्ट बनाया है तो आप बी तक का ही एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब हमारे अंदर सी फीचर भी है और डी फीचर भी है, वो फटाफट बता देंगे, नहीं है, ठीक है. सो एडवर्टाइजिंग जो है वो आपका आज की तारीख में मार्केटिंग के चलते प्रोडक्ट का इतना नॉलेज कस्टमर को हो गया है कि दे देमसेल्व्स आर द बेस्ट जज, ठीक है. पहले जब कोई भी टेक्निकल गैजेट कोई कस्टमर खरीदने जाता था तो मतलब वो पूछता था और जो होलसेलर या रिटेलर है वो उसको चूरन लगाकर बेच देता था. लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे कस्टमर्स ज़्यादा अवेयर हैं. आपके इसमें ये है कि नहीं, इस सिस्टम में ये है कि नहीं, इस सिस्टम में ये है कि नहीं. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. मेरे पापा अभी जैसे समझो उनको ना एक पीसी चाहिए था, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या वर्ड में क्या क्या बनाते रहते हैं, ठीक है. तो अभी ये पीसी चाहिए उनको और गेम्स भी खेलते रहते हैं. वैसे अभी कोई काम तो है नहीं तो गेम खेलते रहते हैं. तो इन्होंने ये रेलवे से रिटायर कर चुके हैं, ठीक है. तो इन्होंने वो नए जो इंजीनियर्स थे जो इनके नीचे काम करते थे उन 2-3 लोगों को फ़ोन लगाया, ठीक है. अच्छा बताओ मुझे ना एक पीसी लेना है, तो क्या क्या होना चाहिए एक पीसी में. तो उन लोगों ने भाई साहब बता दिया, बड़ा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ये. अभी ये जा रहे हैं पीसी खरीदने किसी के पास या कॉल कर रहे हैं, अच्छा ये मिलेगा क्या, अच्छा ये मिलेगा क्या, अच्छा ये मिलेगा. ही डजंट हैव द नॉलेज बट ही हैज़ एक्वायर्ड दैट नॉलेज एंड ही इज़ बेसिकली आस्किंग वेदर इतने में मिलेगा क्या, ठीक है. सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में जागरूकता इतनी फैल गई है मार्केटिंग की वजह से कि पीपल आर अवेयर. आप उनको उल्लू नहीं बना सकते, ठीक है. तो जो भी एडवर्टाइजिंग आप कर रहे होंगे वो जेन्युइन हो जाएगा. इट कैन नॉट बी अ फेक एडवर्टाइजिंग, ठीक है. मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. तो पीपल और रादर प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स विल बी फोर्स्ड टू डू जेन्युइन एडवर्टाइजिंग, ठीक है. दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू फेक एडवर्टाइजिंग दीज डेज, ठीक है. क्वालिटी एश्योरेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. तो आपका भाई साहब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है. काफी सारा इनोवेशन सारे प्रोडक्ट्स में आ रहा है, ठीक है. दस मार्केटिंग टेक्स एफर्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स, हेल्प्स इन सिलेक्शन. In the competitive markets, a huge variety of products by different brands are available to the consumers. तो आपके बहुत variety of products जो है वो consumers को available है, ठीक है. There's a wide variety of products which is available. Marketing helps the consumers in choosing the best products and services from different options available. तो जो भी different options available है marketing helps, ठीक है. Functions of marketing. The important functions of marketing are these, ठीक है. अभी हम देखते हैं भाई साहब marketing research, ठीक है. Okay. Effective marketing is possible when a business takes initiative to Effective marketing is possible when a business takes initiative to identify the consumer's needs, ठीक है.
तो एक बार बिजनेस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है और नीड है, उसके अकॉर्डिंगली हमको भाई साहब चलना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। जैसे आप देखोगे टैली का सॉफ्टवेयर, आप सबने सुना रहेगा टैली सॉफ्टवेयर, ये क्यों ही बना रहेगा? अकाउंटिंग नीड्स को जस्टिफाई करने के लिए। भाई साहब कंपनी में जिसने ये डिजाइन किया या सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसने पहले एक रिसर्च किया होगा किस किस तरीके से भाई साहब अकाउंटिंग होती है, ज्यादा कौन से फॉर्मेट में अकाउंटिंग होती है। तो चलो भाई साहब ये सारे ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं जिसमें इस पे डालोगे तो अपने आप अकाउंटिंग हो जाएगी, बस भाई साहब बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना ये किस वजह से बना होगा? मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट में, ठीक है। सो मार्केटिंग रिसर्च के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट बना। मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द नीड्स। तो नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई साहब, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द नीड ऑफ द मार्केट। तो एनालिसिस करते हैं भाई साहब इंफॉर्मेशन का, ठीक है, ओके। बाइंग एंड असेंबलिंग, this function involves collecting raw materials from different sources at one place for production। तो आपका भाई साहब ये बाइंग एंड असेंबलिंग बेसिकली क्या होता है? इससे भाई साहब हम करते हैं रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन। असेंबलिंग आज की तारीख में कम से कम गैजेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पैसा बचाते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे समझ लो ये इंटरैक्टिव पैनल है, ठीक है। ये इंटरैक्टिव पैनल चाइना ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, या किसी कंपनी ने भी प्रोड्यूस किया रहेगा कहीं किसी, और यहाँ पे इंडिया में आता है। और इंडिया में लोग जीएसटी को बचाने के लिए इसमें एक कंप्यूटर फिट कर देते हैं और बोल देते हैं कि असेंबल्ड पीस है, ठीक है। एक्चुअली असेंबल्ड पीस नहीं है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पीछे कंप्यूटर फिट है, ठीक है, छोटा सा। तो ओपीएस फिट कर दिया भाई साहब, अभी भाई साहब ये एक असेंबल्ड पीस हो गया। असेंबल्ड पीस में जीएसटी बचाया जा सकता है, फिनिश प्रोडक्ट में आप जीएसटी नहीं बचा सकते। तो तमाम चीजें हैं, खैर, ठीक है। तो बाइंग एंड असेंबलिंग, द फंक्शन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन प्लेस फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका भाई साहब अलग अलग जगहों से आप चीजों को असेंबल करके फिर उसको भाई साहब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स डिटरमिन द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। मार्केट प्लानिंग, market planning is the process of organizing and defining the market objectives of the business and creating strategies to achieve them, ठीक है। सो मार्केट प्लानिंग है क्या भाई साहब? ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफाइनिंग द मार्केट। तो पहले तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो मार्केट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके गुड्स को सेल करना, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना एंड क्रिएटिंग और स्ट्रैटेजी बनाना, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट, डिटेल प्लान। ब्लूप्रिंट मतलब समझते हैं, ब्लूप्रिंट मतलब एक प्लान होता है पूरा पूरा, ठीक है। जैसे आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट में बड़े बड़े पेपर्स देखे हैं जिसमें भाई साहब, दैट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट होता क्या है कि ये काम हुआ है और ये आपका ब्लूप्रिंट है, दैट इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट दैट इज डिटेल्ड प्लान दैट हेल्प्स टू ड्रॉ एन आउटलाइन ऑफ द बिजनेसेस ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स। तो एक बिजनेस का ओवरऑल मार्केटिंग एफर्ट्स को भाई साहब ये डिटेल प्लान होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, product development and design play an important role in selling the product, ठीक है, in selling the product। a business has to develop a product that meets the needs of the customer, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक बिजनेस को एक प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा that will meet the needs of the consumer, okay। product design includes decisions related to quality, standard, shape, packaging, color etc of the product, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं भाई साहब? क्वालिटी, स्टैंडर्ड, शेप, पैकेजिंग, कलर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन मींस सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू प्रोसेस, साइज, क्वालिटी, डिजाइन, वेट, कलर एक्सेट्रा। तो ये आपका हो गया भाई साहब स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन। आपने देखा रहेगा भाई साहब एसीज में स्टार रहता है, कभी समझा है उसके बाद क्यों है? फ्रिज अगर खरीदेंगे तो उसमें भी स्टार रहेगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, कभी समझा है? आज जानने की कोशिश की क्या है वो? हाँ हाँ, नहीं, एक्चुअली जो फ्रिज और एसी यूनिट्स होते हैं उनमें स्टार होता है कि मतलब अच्छा प्रोडक्ट नहीं, आपका बिजली कितना बच रहा है उसमें, क्योंकि दीज आर हाई कंजम्पशन यूनिट्स, ठीक है। लेकिन हाँ ये बात और है कि आपको रेटिंग मिलती है किसी प्रोडक्ट में। आप अमेजन में या फ्लिपकार्ट में देखोगे उसकी रेटिंग मिली रहती है 3.5, 4, 5, जो भी रेटिंग मिली रहेगी, ठीक है।
सो आज की तारीख में ऐसा रेटिंग मिलता है। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और क्वालिटी। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है, पैकेज एंड लेबल क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन कंज्यूमर्स, ठीक है। किसी चीज का पैकेजिंग भाई साहब अच्छा होना चाहिए, वो पहला एक ऐसा चीज है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बाजार में अगर आप सेब भी बेच रहे होंगे ना भाई साहब, तो उस सेब दिखना अच्छा चाहिए, ठीक है, उसका टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, लेकिन बाहर से वो दिखना तो पहले अच्छा चाहिए, ठीक है। दैट इज अ सिंपल थिंग, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। एक मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा कोई सेब है भाई साहब, वो टेस्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन पीपल विल नॉट प्रेफर टू बाय बिकॉज नॉट लुकिंग गुड, ठीक है। सो पैकेजिंग एंड लेबल क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन कंज्यूमर्स, ठीक है। An attractive packaging and labeling can make the product more successful. Label refers to a slip found on the product which provides all the information regarding the product and its producer. तो ये एक लेबल होता है जिसमें प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर का सारा इंफॉर्मेशन इसमें होता है, और ये आपका भाई साहब ISBN कोड होता है, ठीक है। This process of displaying a label on the product is called labeling. Branding. Okay, branding is the process of giving special identity to a product with the help of a unique brand name in order to differentiate it from competitors products, ठीक है। तो एक ब्रांड नेम देना जरूरी है, आप किसी का भी नाम नहीं चुरा सकते, ठीक है, वो कॉपीराइट इश्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने भाई साहब अपना कंपनी किसी नाम से एस्टैब्लिश किया है, यू कैन नॉट बेसिकली एस्टैब्लिश अनदर कंपनी बाय दैट नेम, लोगो नहीं चुरा सकते, ब्रांड नहीं तो ये सब ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ यूनिक ब्रांड नेम in order to differentiate it from the competitors products, ठीक है। It is a process of giving a distinct name to one's products. Zomato, Ola, Swiggy, Cafe Coffee Day, Peter England, Royal Enfield, Harry Biscuit, Good Day Biscuit, Parle G are some of the most popular brands. ये भाई साहब आपके ब्रांड्स हैं जिनको आप जानते हैं, आपने यूज किया है, देखा है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप किसी प्रोडक्ट को सेल करके उसको क्लोज नहीं कर सकते। You will have to provide adequate amount of customer service. Only then you will be able to create an impression, retain the customer, and increase your probability of getting promoted to other customers. ठीक है? So the businessman can provide support services like pre-sales service, customer helpline, after-sales service, technical assistance, product demo, etc. to the consumers. These services help in getting, retaining, and growing the customers. Pricing of the product. Pricing is one of the most important and challenging functions of marketing, ठीक है। ये भाई साहब important भी और challenging भी है। The price plays an important role in deciding the success or failure of a product, especially in a highly competitive market. तो बहुत competitive market में price बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज की तारीख में भाई साहब ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है, सबके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप प्राइस को हाई मेंटेन करेंगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। You will have to lower down your margin and lower down the price to attract customers, ठीक है। So pricing of product भाई साहब ये important है। Promotion channels, advertising, personal selling, publicity and sales promotion are the main tools of promotion. तो ये भाई साहब आपके main tools हैं promotion के। Advertising हो गया भाई साहब आपका, personal selling, publicity and sales promotion. Promotional activities help to increase brand awareness in the market. The big hoardings that we see on the highways, railway stations और मार्केट प्लेसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमोशनल एक्टिविटी। तो ये जो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखते हैं, ठीक है, ये एक प्रोमोशनल एक्टिविटी है। प्रोमोशनल एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन refers to the set of activities undertaken for the efficient movement of finished goods from the place of production to the consumer. तो भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका प्रोडक्शन हाउस से वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाता है भाई साहब होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से जाता है भाई साहब रिटेलर के पास। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, पैकेजिंग, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन एंड कस्टमर सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन, transportation is important as the activities of production, sale and consumption may not happen at the same place. Place utility is created by transport activity. तो एक जगह का यूटिलिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी से बढ़ता है, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी बढ़ेगा एक जगह का यूटिलिटी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है।
Various factors like geographical boundaries, nature of the product, cost, target market, speed, reliability, frequency, safety, etc. help in deciding the modes of transportation. ये सारी चीजें भाई साहब आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड्स डिसाइड करती है. वेयरहाउसिंग. Warehouse helps to maintain a smooth flow of goods and to stabilize the prices in the market. तो warehousing भाई साहब क्या करती है? It helps to maintain a smooth flow of goods. आपका जो goods है वो maintained रहे भाई साहब, ठीक है. The function of warehousing is performed by retailers, wholesalers and manufacturers. Warehousing creates time utility. ठीक है, तो आपका भाई साहब time utility कैसे भाई साहब? Warehousing मतलब storing of goods, है ना. तो जब तक ये गुड्स बिक नहीं जाते तब तक ये स्टोर्ड हैं. तो ये क्या बढ़ा रहे हैं? गुड्स का टाइम लाइफ बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं. वेयरहाउसिंग मतलब इफेक्टिव स्टोरिंग बेसिकली क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी फॉर द गुड्स. ठीक है, write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The marketing function that collects and analyzes information from the customers. इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? मार्केट रिसर्च. The function of marketing that deals with product designing, ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट. The process of designing the package for the product, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब पैकेजिंग. ठीक है, ओके. The slip found on the product that provides information regarding the product and its producer label. The marketing function which covers after sales service, customer support service. State whether the following statements are true or false. Marketing helps in increasing national income. True. Marketing research is the process of organizing and defining the market objectives. False. ठीक है. Product development is one time process. ये आपका भाई साहब, क्योंकि प्रोडक्ट में डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन आपको कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा. कौन सा सीरीज चल रहा है आईफोन का अभी? 15. ठीक है, तो भाई साहब देखो कब से चालू हुआ ये? 1 से. आईफोन 1 2 3 4 6 से चालू हुआ. ठीक है, 5 से चालू हुआ भाई साहब 15. तो 15 का सीरीज आ गया. विंडोज का भी देख लो भाई साहब. विंडोज पहले हमारे जमाने में हुआ था डॉस, फिर आया विंडोज 98, अभी 98 से विंडोज 11 तक आए हैं हम, है ना. सो ये सारा भाई साहब कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा आपको. ठीक है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं. ठीक है, सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस. ठीक है, इट इज बेसिकली फॉल्स. ग्रेडिंग आपके क्वालिटी पे होता है. Packaging and labeling not only protect the protect the product but also an effective tool of marketing. तो ये आपका true. 7 P's of marketing. The 4 P's of marketing mix were introduced by E. Jerome. ठीक है, it was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 new elements. तो 7 P's हैं. ठीक है, we'll see what are they. There are 2 types of marketing: product marketing and service marketing. The 4 P's are key factors involved in the marketing of goods and services: product, price, place, promotion. Service marketing, तो product price mixing का भाई साहब ये हो गया. Service marketing mix people, process, physical environment. Product marketing mix product refers to the goods or services that are offered by the company to the customer for sale and are capable of satisfying the needs of the customer. The product can be tangible goods or intangible. तो tangible भी हो सकता है, intangible भी हो सकता है. Price, the price of a product is the amount that a customer pays for the product. ठीक है, price plays an important role in creating demand for the product. Hence, business needs to take utmost care while deciding the price of the product. The cost of the product and the willingness of the customer to pay for the product play a crucial role in deciding the price. ठीक है, place. Apart from offering a right product to the right price, it is important for a business to make the product available to the potential customers at the place that is accessible to them. ठीक है, अभी भाई साहब आप बोलेंगे कि कामोटे एक एरिया है और इस एरिया में हम जो भाजी मार्केट है इसको हम लगाएंगे भाई साहब वाशी में, तो ये बहुत इनकन्वीनियंस हो जाएगा, है ना. तो आपको सही जगह पे सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाना है. एंड हेंस प्लेस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, आपका मार्केट यहीं पे बनेगा यहाँ के लोगों के लिए. प्रमोशन आपका बहुत जरूरी है. प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मार्केटिंग, ब्रांड रिकग्निशन, सेल्स, हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट. ठीक है, इट कन्वेज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल बायर्स. सर्विस मार्केटिंग मिक्स में आते हैं हम. ठीक है, तो आपका पीपल. सो व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स? द पीपल इंक्लूड एम्प्लॉयज हु हेल्प टू डिलीवर द सर्विस टू द कस्टमर. तो कस्टमर सर्विस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं. सेल्स हो गया, सेल्स के बाद जो सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए. ठीक है, right people at the right place add value to the business.
आपने भाई साहब कस्टमर सर्विस में किसी ऐसे बंदे को रखा है जो कस्टमर क्वेरी को हैंडल कर ही नहीं सकता है, उल्टा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो इससे आपका रेपुटेशन खराब होगा, ठीक है। सो राइट पीपल शुड बी देयर एट द राइट प्लेस, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू रिक्रूट द राइट पीपल, ट्रेन देम, डेवलप देयर स्किल्स एंड रिटेन देम टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो आपका जो कस्टमर सर्विस या आफ्टर सेल्स सपोर्ट का टीम होगा उसको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शंस एंड क्वेरीज बोथ, ठीक है। प्रोसेस भाई साहब, प्रोसेस refers to the steps in delivering the products and services to the consumer. Process are important to deliver a quality service. Good processes ensure that the same standard is maintained while delivering the service to the consumer. Physical environment in the service market, the physical evidence is important to ensure the successful delivery of the service. तो भाई साहब फिजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी बरसात के मौसम में भाई साहब आप खाना खोल कर तो किसी को ले नहीं जा सकते, पूरा पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। फिजिकल एविडेंस helps the customers to identify brand leaders in the market. It also has an impact on customer satisfaction. It includes location, layout, interior design, packaging, branding, waiting area, dress of staff and their behavior etc. ठीक है। आपको भाई साहब अगर एक होटल डालना है या एक ईटरी डालनी है या ईटिंग आउटलेट डालना है तो उस तरीके का एम्बियंस क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे भाई साहब काट रहे हैं, ये ले खा, ऐसे तो नहीं दे सकते ना भाई साहब, ठीक है। एक रेस्टोरेंट प्रॉपर अगर आपको क्रिएट करना है, यू हैव टू क्रिएट दैट एम्बियंस एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आए, सिर्फ क्वालिटी से आप चीजों को नहीं कर सकते, है ना। आप बहुत अच्छा भाई साहब प्रोडक्ट बना रहे होंगे, इससे कुछ लोग आएंगे, लेकिन अगर आप भाई साहब बैठने के लिए सीट नहीं दे रहे हैं या पंखा नहीं चल रहा है तो ये सब चीजें भी लोग देखेंगे, राइट। दे विल आल्सो सी टू दीस थिंग्स, ओके। तो ये आप कैसा फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, what kind of physical environment at the point of sale are you offering to the customer, this becomes important, ठीक है। okay, check your grasp, complete the sentences, they were introduced by, तो आपके कितने 4 P's है ना, 4 P's of marketing mix, okay। in the 4 P's of marketing mix, dash is also known as distribution channel, तो आपका place, ठीक है, place is known, dash is a tool of marketing communication which helps to publicize the product to the consumer, that is promotion, okay। better the chain of dash, higher the coverage of the product, distribution chain जितना अच्छा होगा आपका उतना ज्यादा कवरेज होगा। dash refers to the steps involved in delivering products and services to the consumer, तो ये हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है। E. Jerome McCarthy introduced the 4 P's of marketing mix, correct, ठीक है। there are only 3 P's for service marketing crew, ठीक है, okay। physical examination, physical environment includes layout and location, layout and location true है ना भाई साहब, ठीक है। layout and location, okay। write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements, the combination of different marketing variables that the firm blends to capture the target market, तो ये हो जाएगा आपका marketing mix, ठीक है।